students, how are you all? I hope all of you are doing really well. Today we will learn about a very interesting chapter, that is geometry. Warm up. Circle, triangle, rectangle, square and oval. These are plane और flat shapes. इन्हें हम क्या कहते हैं? Plane या फिर flat shapes. Okay? Cube, cuboid, sphere, cylinder and cone are solid shapes. Okay? So ये हैं आपकी सारी solid shapes. Okay? Plane shapes. So plane shapes में सबसे पहले हम बात करते हैं rectangle की. A rectangle has 4 sides and 4 corners. Are all sides of a rectangle equal? देखिए, rectangle की क्या चारों sides equal है? No. Are the opposite sides of a rectangle equal? अभी opposite sides क्या हैं? देखते हैं बच्चों. So rectangle कुछ इस तरह से होता है आपका, जिसकी 4 sides होती हैं. These are the side 1, 2, 3 and 4. और आपसे बच्चों ये भी बोला गया corners. ये आपके corners होते हैं 1, 2, 3, 4 corners. तो जितनी sides होंगी उतने ही corners होंगे. ओके अब rectangle में क्या होता है बच्चों? इसकी opposite sides equal होती है. Means this side is equals to this side. Okay, and this side is equals to this side. Okay, so इसकी opposite sides क्या है? Equal. Next is square. A square also has 4 sides. Okay, 4 sides होते हैं and 4 corners होते हैं. And are all the sides of a square equal? क्या चारों sides equal हैं? Yes, square की चारों sides equal होती हैं. Okay? Triangle. A triangle has 3 sides. 1, 2, 3. अब 3 sides है तो 3 corners भी होंगे. Its sides may be or may not be of the same length. इसकी जो side है ना, वो same भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती. Okay? Next one is circle. A circle has no side and corner. Circle की कोई side नहीं होती है, side नहीं होती तो corner भी नहीं होते. Okay? Diagonal. A line joining the opposite corners of a shape is called its diagonal. Okay? For example, क्या आपका है? Rectangle. Okay? और आपसे क्या कहा गया है? Line joining the opposite corners. देखिए इस corner के opposite ये है तो आप इसे join कर देंगे. इसके opposite ये है तो इसे join कर देंगे. तो ये आपके diagonals हैं. Okay? So if you draw the diagonals of a rectangle, you get 2 diagonals. Its diagonals are equal in length. Okay? Rectangle की diagonals equal होते हैं. You can draw 2 diagonals in a square. Square में भी हम 2 diagonals draw कर सकते हैं and its diagonals are equal in length. Square की भी diagonals equal होते हैं length में. But you cannot draw diagonals of a triangle and a circle. Okay? क्योंकि इसमें opposite corners नहीं होते and circle में तो आपका corner ही नहीं होता, तो आप कैसे diagonals draw करेंगे? Okay? Now summary of the properties of plane shapes यहाँ पे given है. Number of sides, rectangle की होती हैं 4, square की होती हैं 4, triangle की 3 and circle की 0. Number of corners, देखिए जितने sides होंगे उतने ही corner, जितनी sides उतने ही corner. Okay? Number of diagonals, rectangle के 2, square के 2, triangle के 0 and circle की 0. Are only the opposite sides equal? क्या सिर्फ opposite side equal होती हैं? Rectangle के केस में yes, but square के केस में no. And triangle में maybe हो सकता है और नहीं भी. But circle में कोई side ही नहीं होती है. Next, are all the sides equal? Rectangle की सारी sides equal होती है? No, सिर्फ square की होती हैं. और triangle में देखिए बच्चों triangle में ना एक equilateral triangle होता है, सिर्फ उसकी तीनों sides equal होती हैं. Okay? So triangle आपके अलग अलग तरह के होते हैं, इसीलिए equal हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. Okay? Are the diagonals equal? Yes, in case of rectangle and square के भी diagonals होते हैं equal. But triangle and circle के diagonals ही नहीं होते. So equal होने का तो सवाल ही नहीं होता. Okay? Exercise 8.1 is given over here. Students, do it yourself. Okay? Now creating shapes through paper folding and cutting. Square. Fold a rectangular piece of paper so that the shorter side coincides with the longer side. Cut off the excess portion. Then unfold the remaining paper. एक rectangular piece आपने बच्चों पेपर का लेना है और इस तरह से कि जो शॉर्टर साइड है वो लॉन्गर साइड के साथ कोइंसाइड करे. ओके फिर जो भी एक्सेस पोर्शन होगा उसको अपने कट करना है और फिर उसके बाद जो बाकी का पेपर है उसे आपने अनफोल्ड करना है. ओके सो आपका इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा. ट्राइंगल कैसे बनाएंगे? फोल्ड द स्क्वायर शेप पेपर अलोंग द डॉटेड लाइन. ये जो डॉटेड लाइन है इसके अलोंग आपने उस पेपर को फोल्ड कर देना है.
फिर कट अलॉन्ग द फोल्ड यू विल गेट 2 ट्राइंगल्स। फिर ये जो फोल्ड है आपने उसको कट करना है और कट करके फिर आपके पास 2 ट्राइंगल्स आ जाएंगे। ओके, रेक्टेंगल, फोल्ड द स्क्वायर शेप्ड पेपर अलॉन्ग द डॉटेड लाइन। एक स्क्वायर शेप्ड पेपर आपने लेना है, ये डॉटेड लाइन आपको गिवन है और इस डॉटेड लाइन के अलॉन्ग आपने इसे फोल्ड करना है। देन कट अलॉन्ग द फोल्ड यू विल गेट 2 रेक्टेंगल्स। फिर जो फोल्ड है वहां से कट करेंगे सो यू विल गेट 2 रेक्टेंगल्स। ओके, एंड सर्कल, फोल्ड द स्क्वायर शेप्ड पेपर ट्वाइस। जो स्क्वायर शेप पेपर है उसे 2 बार आपने फोल्ड करना है। फिर कट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन यू विल गेट अ सर्कल। फिर आपको डॉटेड लाइन के अलॉन्ग उसको कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सर्कल। ओके, नाउ स्ट्रेट एंड कर्व्ड लाइंस। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा स्ट्रेट और कर्व्ड लाइंस कैसी होती हैं, है ना। स्ट्रेट लाइंस कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्लांटिंग। देखिए ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है वर्टिकल लाइन एंड दिस इज स्लांटिंग लाइन। जब आप नर्सरी में अल्फाबेट्स पढ़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते हैं ना हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लांटिंग लाइन। ओके, दिस इज स्लीपिंग लाइन, दिस इज स्टैंडिंग लाइन। ओके, सो होल्ड अ पीस ऑफ थ्रेड टाइटली यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप एक थ्रेड को टाइटली पकड़ेंगे ना तो आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। होल्ड अ पीस ऑफ थ्रेड लूजली यू विल गेट अ कर्व लाइन। और अब उन्हीं जो थ्रेड को आप लूजली पकड़ेंगे तो आपको कर्व्ड लाइन मिलेगी इस तरह से। कर्व्ड आपकी कैसे भी हो सकती है। ओके, एक्सरसाइज 8.2 इज गिवन ओवर हियर, स्टूडेंट डू इट योरसेल्फ। ओके, symmetry. See all these pictures carefully. The dotted line divides the figures in 2 equal parts. That is mirror halves. अब ये जो dotted line है ना, ये क्या कर रही है? इन पिक्चर को equal halves में divide कर रही है. The figures in which one part overlaps with the other part exactly are called symmetrical figures. Okay, तो जो figures है जिनमें एक पार्ट दूसरे पार्ट पे overlap करता है exactly, वो symmetrical figures होते हैं। जैसे कि ये दो, फॉर एग्जाम्पल ये एक फिगर है और दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, मैंने इसे फोल्ड किया, ये ओवरलैप हो गए, सो ये सिमेट्रिकल फिगर्स है। ओके, सो आइडेंटिफाई सिमेट्रिकल फिगर्स यूजिंग अ मिरर। मिरर की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि ये सिमेट्रिकल फिगर्स हैं या नहीं है। ओके, प्लेस अ मिरर अलॉन्ग द डॉटेड लाइन। व्हाट यू सी इन द मिरर विल लुक जस्ट लाइक द अदर हाफ ऑफ द शेप। आपको करना क्या है? मिरर को प्लेस करना है अपने मिरर, ये जो डॉटेड लाइन है उसके अलॉन्ग, और फिर जो आप मिरर में देखेंगे वो क्या है? उस हाफ, उस शेप का दूसरा हाफ है। ओके, नाउ सिमेट्रिकल शेप्स बाय पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर, ड्रॉ अ शेप एंड कट इट आउट, अनफोल्ड द शेप, बोथ हाफ्स आर एग्जैक्टली द सेम। आपने एक पेपर को फोल्ड करना है, एक कोई भी शेप ड्रॉ करें और उसको फिर कट करें, फिर शेप को अनफोल्ड करना है, तो दोनों हाफ्स जो आएंगे आपके पास वो दोनों ही क्या होंगे? सेम होंगे। ओके, एक्सरसाइज 8.3 is given over here. Students, do it yourself. Okay. View. Have you ever looked at things from different positions? क्या आपने different positions से चीज़ों को देखा है कभी? देखिए, जैसे आपकी कार है, अगर आप ऊपर से देखेंगे ना टॉप व्यू कुछ इस तरह से नजर आएगा और साइड से देखेंगे तो इस तरह से। बी, टॉप से आप देखेंगे इस तरह से व्यू होगा, साइड से देखेंगे तो इस तरह से। इसी तरह से ये आपकी हैट है, कैप है। सो टॉप से देखेंगे आपको इस तरह से नजर आएगा, साइड से इस तरह से नजर आएगा। Okay, so all the images are seen from different positions. Sometimes they look different when seen from the top or the side. So हर images को आप different position से देख सकते हैं, और कई बार क्या होता है कि अगर आप उनको top position से देखेंगे या side position से देखेंगे तो आपको different वो नज़र आते हैं। Okay, कई बार। So exercise 8.4 is given over here, students. Do it yourself. Next, plane and curved surface. Surface is that part of an object which can be seen, touched and felt. Surface object का वो part होता है जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं and feel भी कर सकते हैं। Okay, surface can be plane, जिसे हम कहते हैं flat, flat भी हो सकता है और curved भी हो सकता है। जैसे मैच बॉक्स की बात करें तो ये इसका surface कैसा है? flat या plane। डस्टर का flat या plane। अच्छा, बॉल का क्या होगा? curved होगा, है ना। नेक्स्ट, solid shapes. All these are solid shapes, जैसे हमने पहले पढ़ा, cube, cuboid, sphere, cylinder and cone. So surface of solid shape is called a face. Okay, surface जो होता है solid shape का उसे हम कहते हैं face. Okay, and then line where two faces meet is called an edge. और जहाँ पे दो faces meet करते हैं उसे हम कहते हैं edge. The point where 3 edges meet is called a corner or vertex. और जिस point पे आपके 3 edges meet करते हैं ना उसे या तो हम कहते हैं corner या फिर कहते हैं vertex. Next, cube. A cube has
6 faces, 8 corners and 12 edges. Remember that. And all the faces of cube are square and are of same size. जितने भी फेसेस होंगे क्यूब के वो स्क्वायर होते हैं, और स्क्वायर होते हैं तो इसीलिए वो सेम साइज के होते हैं. ओके, ड्रॉ 2 स्क्वायर्स ऑफ सेम साइज विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, जॉइन द कॉर्नर्स टू गेट अ क्यूब. अब आपको क्या करना है, 2 स्क्वायर सेम साइज के आपने ड्रॉ करने और उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए. ओके, एक स्क्वायर ये बन गया, एक स्क्वायर ये बन गया, और अब आपको क्या करना है, कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है. ओके, और देखिए बन गया ना आपका क्यूब. ओके, cuboid. A cuboid has 6 faces, 8 corners and 12 edges. The faces are plane and all the edges are straight. Its opposite faces are of same size. To draw a cuboid, draw 2 rectangles of same size, then join their corners. देखिए, cuboid के भी 6 faces, 8 corners और 12 edges होते हैं क्यूब की तरह, बट यहाँ पे जो faces हैं आपके प्लेन है और जो एजेस हैं वो स्ट्रेट हैं. इसकी ऑपोजिट फेसेस आपके सेम साइज के होंगे. ओके, क्यूबॉइड ड्रॉ करने के लिए बच्चों आपको 2 रेक्टेंगल्स को ड्रॉ करना पड़ेगा सेम साइज का, और फिर उनके कॉर्नर्स को जॉइन करेंगे. ओके, कुछ इस तरह से जैसे पिक्चर में आपको दिया गया है. स्फीयर. अ स्फीयर हैज नो कॉर्नर एंड एजेस. इट हैज ओनली 1 कर्व्ड फेस. देख सकते हैं आप, इसका कर्व्ड फेस है. ओके, नेक्स्ट सिलेंडर. अ सिलेंडर हैज 2 कर्व्ड एजेस, 2 flat faces, 1 curved face and no corners. जैसे कि आप देख सकते हैं कोई कॉर्नर नहीं है सिलेंडर का. ओके, टू ड्रॉ सिलेंडर, ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ सेम साइज एंड जॉइन देम इन स्ट्रेट लाइंस. देखिए सिलेंडर कैसे ड्रॉ करेंगे, 2 सर्कल बना दीजिए और फिर उन्हें स्ट्रेट लाइन से जॉइन करेंगे. ओके, नेक्स्ट कोन. अ कोन हैज 1 curved edge. It has 1 curved and 1 flat face and 1 corner or vertex. Okay, so this is its vertex, this is the curved face and this is the flat face. To draw a cone, draw 2 lines from a point on the circle as shown. Okay, ये circle है and इस तरह से आप 2 lines को draw करेंगे, बन गया आपका cone. When you trace the flat face of a cylinder or cone on a piece of paper, you get the shape of a circle. जब भी आप flat face cylinder का या cone का पेपर पे trace करेंगे ना, तो आपको हमेशा circle का shape मिलेगा. Okay, exercise is given over here, do it yourself. Okay बच्चों. Now, tangram. What is tangram? Actually, tangram is a Chinese puzzle and it's also known as wisdom puzzle. There are 7 pieces in a tangram puzzle set. इसमें actually a Chinese puzzle होता है और उसमें 7 आपके क्या होते हैं, pieces होते हैं. There are 2 large triangles, 1 medium triangle, 2 small triangle, 1 square and 1 parallelogram. Okay, parallelogram आपका होता है जिसकी 4 sides होती हैं. Okay, so इसमें देखिए आपके 2 बड़े triangles होते हैं. एक मीडियम ट्रायंगल होता है, 2 छोटे ट्रायंगल्स होते हैं, एक स्क्वायर होता है, एक पैरेललोग्राम होता है. ओके, सो हो गए आपके 7 पीसेस. यू कैन फॉर्म डिफरेंट शेप्स बाय जॉइनिंग द पीसेस ऑफ टैंग्राम. टू मेक अ सेट ऑफ टैंग्राम पीसेस फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. तो आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं इन पीसेस को जॉइन करके. और टैंग्राम बनाने के लिए देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना पड़ेगा. नंबर 1, टेक अ पीस ऑफ थिक कार्डबोर्ड and make a square 6 centimeter by 6 centimeter और 8 centimeter by 8 centimeter. सबसे पहले आपको थिक मोटा सा कार्ड लेना पड़ेगा और फिर आपको स्क्वायर बनाना है 6 by 6 का या 8 by 8 का, 8 centimeter. ओके. 2, draw a grid of squares inside the big square with lines drawn lightly. They are needed as guides. अब इसके बाद ग्रिड बना रहे हैं स्क्वायर्स के, बड़े स्क्वायर के अंदर, और उसमें लाइंस जो लाइटली आप ड्रॉ करेंगे. ओके. 3, cut the square into 7 separate pieces. These 7 pieces form the full set of tangram. और इसके बाद आपने स्क्वायर को 7 separate pieces में कट करना है. ये 7 pieces जो हैं ये बनाएंगे full set of tangram. You can form shapes of animals such as cat, rabbit and duck by rearranging the tangram pieces. So देखिए ये जो figures हैं आपके पास given है ना, like आपके पास कैट, रैबिट और ये डक का जो शेप है, आप इन tangram pieces से उनको बना सकते हैं. ओके. Exercise 8.6 is given over here. Do it yourself. Now, tiling. The designs on a floor are made by arranging tiles. The tiles fit into each other without any gap or overlaps. आपने देखा होगा कि आपके फ्लोर्स में ना कुछ डिज़ाइन हम बनाते हैं टाइल्स को अरेंज करके, और आपने ध्यान से देखा होगा कि टाइल्स जो है फिट हो जाते हैं एक दूसरे में और कोई भी गैप नहीं होता, ना ही वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं. ओके. Different tiling patterns can be made with different shapes. आप अलग अलग
शेप्स बना सकते हैं डिफरेंट टाइलिंग पैटर्न से, ओके। एंड डिफरेंट पैटर्न्स कैन ऑल्सो बी मेड बाय यूजिंग 2 और मोर डिजाइन ऑफ टाइल्स। और कई बार क्या होता है कि हम 2 डिजाइन को कंबाइन कर लेते हैं या ज़्यादा डिजाइन जो है टाइल्स के कंबाइन करके फिर हम पैटर्न्स बनाते हैं, ओके। एक्सरसाइज 8.7 इज गिवन ओवर योर स्टूडेंट्स, डू इट योरसेल्फ, ओके। और तो देखा आपने ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग था ना, ओके। सो कीप डूइंग प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर।